10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। एक इंस्टाग्राम रील से भी छोटा समय, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही 10 सेकंड उनकी पूरी जिंदगी बन जाते हैं। 10 सेकंड में कोई चैंपियन बनता है, 10 सेकंड में कोई हिस्ट्री क्रिएट कर देता है, और कभी कभी 10 सेकंड को हासिल करने के लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। लेकिन क्या हो अगर एक दिन आपको एहसास हो कि आप जिस फिनिश लाइन के पीछे भाग रहे थे शायद आपको उसकी कभी परवाह ही नहीं थी। एंड वी ऑल आर रनिंग टुवर्ड्स दैट, एंड देन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई? Then why are you always running? Because it gets blurred. What do you mean? What's blurred? The world. When I run, it hurts more than reality, so it distracts me. यही सवाल पूछती है 100 मीटर्स, द ऑर्ब ऑफ द मोमेंट ऑफ द अर्थ। द बेस्ट एनिमे मूवी ऑफ 2024 के क्रिएटर के वर्क पर बेस्ड एक एनिमे मूवी रिलीज हुई थी, which was kind of suppressed by movies like Chainsaw Man and Demon Slayer. 100 मीटर्स एक ऐसी एनिमे मूवी जिसे देखकर आपको लगेगा that it's just about sprinting, running and competition. And honestly, it's understandable. पूरे मूवी में ये लोग से भागते रहते हैं, literally. Why are you running? Why are you running? But the deeper you go, the more you will realize that this story wasn't really even about running. It was deeper, far more self-reflecting than you can ever think about. तोगाशी हमेशा से अलग था। कुछ लोग मेहनत करके तेज बनते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस करके जीतते हैं, लेकिन तोगाशी वह बस पैदा ही तेज हुआ था। What? या जब बाकी बच्चे दौड़ना सीख रहे थे तब वह जीतना सीख चुका था। उसके लिए स्पीड कोई अचीवमेंट नहीं थी, वो उसकी आइडेंटिटी थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि जब किसी चीज के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती तो आप उसकी वैल्यू भी नहीं समझते। फिर आता है कोमिया। एंड इफ तोगाशी रिप्रेजेंट टैलेंट, कोमिया रिप्रेजेंट स्ट्रगल। दौड़ना उसे पसंद नहीं, दौड़ना उसे आता भी नहीं। हर बार दौड़ने के बाद ऐसा लगता है कि उसके फेफड़े बाहर आ जाएंगे। He is slow, he is awkward, and honestly, he is terrible at running. But despite of all that, he keeps running. Why? क्योंकि कभी कभी इंसान जीतने के लिए नहीं दौड़ता, कभी कभी वह सिर्फ अपनी परेशानियों से दूर भागने के लिए दौड़ता है। And I think that's why Komiya feels so real, because we all have been there, trying to escape reality, trying to escape ourselves. When Togashi and Komiya become friends, the movie truly begins. They are completely opposite. Different abilities, different personalities, but एक ही ट्रैक। तोगाशी को लगता है कोमिया बेवकूफ है, कोमिया खुद भी यही सोचता है। And yet somehow they understand each other. Togashi starts training Komiya, pushing him, helping him improve, teaching him how to become stronger. And for the first time, Komiya finds a goal. Not just to run, but to become faster, to win, to prove something to himself. And watching that growth is incredibly satisfying, because it's not just about physical progress, it's emotional growth too. Here's where the movie becomes fascinating. हम जानते हैं कि कोमिया क्यों दौड़ता है, what's his purpose, but why does Togashi runs? Who knows? और इसका जवाब किसी के पास नहीं, even Togashi के पास भी नहीं। The movie keeps asking this question again and again and again, क्योंकि उसने कभी खुद से ये सवाल पूछा ही नहीं। जब आप हमेशा जीतते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप शुरू क्यों हुए थे, और यही तोगाशी के साथ भी होता है। वो दौड़ता है लेकिन उसे पता नहीं कि जाना कहाँ है। He has talent, he has speed, he has everything an athlete could want except purpose. और बिना पर्पस के टैलेंट धीरे धीरे बोझ बन जाता है। Because talent can get you ahead, but it can't tell you where to go. When the fear starts winning, as the years pass, something changes. The boy who used to dominate every race start losing something far more important than speed. His confidence, passion, meaning. The fear slowly creeps in. Not the fear of losing, but the fear of asking, what if none of this matters? And that's terrifying, because losing a race hurts, but losing the reason to run, that breaks something much deeper. Most sports anime follow a simple formula. The hero struggles, the hero trains, and the hero wins. The end. लेकिन 100 meters ने बोला ये सब छोड़ो. This movie doesn't care about trophies, it doesn't care about medals, and surprisingly enough, it doesn't even care that much about winning. Instead, it focuses on something far more important. Why do people keep going?
Why do people keep running? And why do people keep trying? Even if they fail, they are scared. They don't know what comes next. मूवी में कई रनर्स हैं, but they all have their own reason to run. कोई रिकॉर्ड्स के लिए दौड़ता है, कोई रिकॉग्निशन के लिए, कोई अकेलेपन से बाहर बचने के लिए, तो कोई खुद को साबित करने के लिए. और शायद that's exactly how life works. कॉलेज, जॉब, मनी, सक्सेस. लेकिन अगर अंदर झांक कर देखे तो सबकी दौड़ अलग है, सबकी मंजिल अलग है. Everyone is chasing something different. Everyone has their own finish line. वैसे 100 मीटर्स ओरिजिनली एक 5 वॉल्यूम मांगा है और इस अडेप्टेशन के पीछे जो स्टूडियो है उसका नाम है रॉक एंड रोल माउंटेन. नाम तो सुना ही होगा. नहीं. और ऑनेस्टली मैं आपको ब्लेम भी नहीं करूंगा क्योंकि ये उनका सिर्फ दूसरा मेजर प्रोजेक्ट था और पहला उनके बारे में बात ना करे तो अच्छा है. लेकिन कभी कभी ग्रेटनेस एक्सपीरियंस से नहीं पैशन से आती है और रॉक एंड रोल माउंटेन उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है. इस स्टूडियो के फाउंडर है केंजी इवाइजावा और फाउंडर कहना शायद अंडरस्टेटमेंट होगा क्योंकि ये स्टूडियो जितना केंजी का है उतना केंजी स्टूडियो का है. उनकी पहली फीचर फिल्म पर सिर्फ 5 लोग काम कर रहे थे और जब क्रेडिट्स देखते हो तो रियलाइज होता है कि केंजी ने लगभग हर पॉसिबल रोल को खुद निभाया है. डायरेक्टर, एनिमेटर, एडिटर और भी ना जाने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एक आदमी, 40,000 से ज्यादा फ्रेम्स और उस फिल्म को कंप्लीट करने में लग गए थे 7 साल. सिर्फ सोचिए 7 साल एक प्रोजेक्ट के लिए. आज की इंडस्ट्रीज में जहां लोग वीकली डेडलाइन से लड़ रहे हैं वहां किसी का एक फिल्म के लिए इतना वक्त लगा देना ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल लगता है. और अगर केंजी के फिल्म मेकिंग को डिफाइन करने वाली एक चीज है तो वो है रोटोस्कोपिंग. मैन, दिस मैन इज जस्ट इन लव विथ रोटोस्कोपिंग. सिंपल वर्ड्स में लाइव एक्शन फुटेज को रेफरेंस बनाकर एनिमेशन क्रिएट करना. और हाँ, पहली नजर में ये थोड़ा अजीब लग सकता है. कुछ लोग तो कहते हैं कि रोटोस्कोपिंग सिर्फ ट्रेसिंग है, जैसे किसी इमेज के ऊपर ड्राइंग कर दी हो. लेकिन रियलिटी उससे काफी डिफरेंट है क्योंकि चाहे आप रोटोस्कोपिंग करो या ट्रेडिशनल एनिमेशन, हर फ्रेम को फिर भी ड्रॉ करना पड़ता है. हर मूवमेंट को, हर एक्सप्रेशन को लाइफ देनी पड़ती है. और सच कहूँ, कई बार रोटोस्कोपिंग नॉर्मल एनिमेशन से भी ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है. इसीलिए ये टेक्निक हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है. एनिमे इंडस्ट्री इसे फुल्ली एम्ब्रेस नहीं करती. कई व्यूअर्स तो कहते हैं कि ये एनिमे जैसी फील ही नहीं होती. और ऑनेस्टली मैं उनकी बात समझ सकता हूँ. कुछ सीन्स देखकर ऐसा लगता है कि रियलिटी और एनिमेशन के बीच की लाइन ब्लर हो गई है. लेकिन शायद यही पॉइंट भी था क्योंकि 100 मीटर्स परफेक्शन दिखाने की कोशिश नहीं करती. ये ऑथेंटिसिटी दिखाती है. रियल मूवमेंट, रियल वेट, रियल स्ट्रगल. और फिर मूवी वापस तोगाशी के पीछे लौट आती है. 10 साल बीत चुके हैं. जो कभी सबको पीछे छोड़ देता था अब उसेन बोल्ट के आसपास भी नहीं है. एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो प्रोफेशनल रनिंग से कट होने के करीब पहुंच जाता है. और यहाँ मुझे कंफ्यूजन हुई क्योंकि ये तो मेन कैरेक्टर है, इसे जीतना चाहिए, यही तो स्पोर्ट्स स्टोरी करती है, राइट? लेकिन लगभग 1 घंटा गुजरने के बाद मूवी आपको एक बात समझाती है. इट वॉज नेवर अबाउट रनिंग. मूवी के एंडिंग में 10 सेकंड की रेस होती है बट इट डजंट शो हु विंस द रेस एट द एंड. दैट्स वाई मूवी के आखिर तक आपको शायद सारे आंसर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट सवाल जरूर मिलेगा. एक ऐसा सवाल जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकता है. तोगाशी और बाकी कैरेक्टर्स को 10 सेकंड समझने के लिए 30 साल लग गए. That it wasn't about running. It was about finding that purpose to keep going. तो आपको पता होना चाहिए that why do you run? और जब आपको उसका जवाब मिल जाए तब चाहे रेस 100 मीटर्स की हो या पूरी जिंदगी की, you will always win. 100 meters is not just a movie. It's a reminder कि टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है लेकिन पर्पस ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है. और शायद यही वजह है कि यह फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहती है. Because somewhere within all of us, we all are running for that 100-meter race. So let me ask you this question again. Why do you run? If you like the video, don't forget to like, share and subscribe and comment below. I will see you guys in the next video. Thanks for watching.